prayer. So I would request all of you, please stand at your seat. I would like to call Dr. Prashant Joshi to welcome the Mr. Vikas with the flowers of bouquet. Mr. Vikas is the Chief Terminal Manager in IOCL. And Gokul Global University. I welcome IOC officials. Mr. Vikas Kumar. I welcome Mr. Rajendra sir. I welcome Mr. Akhil Kumar. And I welcome Gaurav Kumar. Sir, we are heartily welcome to you. आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आज जो सेमिनार है उस पे वो सेमिनार के लिए आप आए. थैंक यू वेरी मच सर. फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. फ्रेंड्स, 2-3 दिन पहले ही हमने एक मिरेकल देखा है ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में, जो बड़ौदा बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे हो रहा है. वहाँ पे एक टेक्नोलॉजी यूज की गई है जिससे दे कंस्ट्रक्ट आरसीसी रोड. राइट, जितना हम टेक्नोलॉजी का फ्रेंड्स यूज करेंगे उससे हमारा स्पीड बढ़ेगा, क्वालिटी एश्योरेंस होगी, स्ट्रेंथ एश्योरेंस होगी, वर्क काफी फाइन होगा और वी कैन गेट मोर प्रॉफिट. इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स कि आज जो भी एक्सपर्ट्स आपको जो भी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं वो आप सुनिए, लिखिए और यूज दैट इंफॉर्मेशन इन योर फ्यूचर कैरियर. मैं फिर से आईयूसी के ऑफिसर्स को थैंक यू बोलता हूँ कि सर आप यहाँ पे आए, काफी दूर से सर आए, ऑल आर कमिंग फ्रॉम बड़ौदा. तो आई हार्टली वेलकम यू और हम फ्यूचर में भी ऐसे सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस करते रहेंगे जिससे हमारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो. और आज मैं सिविल डिपार्टमेंट के सारे फैकल्टीज को धन्यवाद देता हूँ कि काफ़ी कम समय में आपने आयोजन किया है और काफ़ी अच्छा आयोजन हुआ है. आई कांग्रेचुलेट टीम सिविल. और फ्रेंड्स, काफ़ी दिन के बाद हम मिल रहे हैं वापस, तो फिर से आप स्टडी में लग जाए और जो जितना भी आराम किया है उससे दुगनी मेहनत करके हम अपने अचीवमेंट और गोल को अचीव करें. इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि हम एसओपी का पालन करें. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. And engineering graduates, it is a pleasure to us to be present at this university, and on behalf of IOCL, it's a pleasure that we came here for interacting with engineering college students, which we were once upon a time. So moving forward, first there are few things that we will be doing today. First is this period from 15th January to 15th February, oil companies celebrated as they say Saksham. So this is a Saksham 2021. So Saksham is basically oil and gas conservation awareness program where we promote how to conserve the oil.
there is a difference between saving the oil and conserving the oil. So we will have a discussion. Okay, this awareness presentation will be taken up by Mr. Vikas sir. Second, he will also be taking presentation on bitumen. Okay, bitumen is a binding material for flexible road pavement. Bhargav sir was telling me like we are moving forward to a concrete pavements, which in 2000, I think in 2015, this concept came up, and over the time it was realized that there are many difficulties with the rigid pavements. Okay, and particularly this road from I think Mumbai, Delhi to Mumbai, particularly Baroda to Mumbai section was designed for a rigid road, which has now been changed to a flexible road. Flexible means a bituminous road. Why a flexible road is required is mostly because flexible has the less wear and tear, and second, there is no cracks, development of these cracks and other things are not there. Though the technologies are changing, bitumen as such is being modified, and new like performance brakes or bitumens are being in the market, and IOC is the only company which has gone for mixing even plastic in bitumen. This we have demonstrated in Faridabad, and this we are pursuing at other projects also. But the drawback is that one bitumen percentage in concrete mix is very less. Further, plastic we can mix is only 1 to 2%. So it's a very less amount that we can mix. So there are other things also. So, but these two presentations will be taken care by Mr. Bhargav sir, who is in charge of our bitumen terminal at Vadodara. Let me talk about Indian Oil. Indian Oil is the energy of India. Like in our vision, we promote it as ourselves as the energy of India, which you must have seen. In 2010, there were oil companies which were ranked number 1, number 2. Okay, and things in 10 years keeps on changing. Now today's Amazon and this Facebook, these are the number 1 companies. And after 10 years, this will also change. And before that, chemical industries were being dominated by DuPont and these or other chemical companies. So this keeps on changing. Okay. So for Indian Oil also, we have moved from purely oil company to an energy company, which is not the case with all the companies. Particularly take the example of Reliance. Reliance does not recognize it as an energy company. They are oil to chemical company. They want to move into chemical businesses, where polypropylene and those products are there. But IOC as such, we do not find ourselves in a chemical business. We are an energy company by vision and mission, and we enshrine the vision of being a global leader in this market. Okay. As you might be knowing that Indian Oil itself is among we have the 151 rank in the Fortune 500 list, and which is the list of all the biggest corporates in the world. Moreover, what I think most of you know must be knowing Indian Oil from the point of view of the retail outlets. You must be seeing some retail outlet where Indian Oil is written. So Indian Oil is as a brand, we are there as a pump. But besides that, there are many other segments where presence of Indian Oil is there. Second segment you might have noticed is Indian, our LPG brand, which is branded as Indian, where you will not find it as Indian Oil, but Indian is there, which also has a significant market share. Third is, you will, whenever you are going by flight, you must be seeing some tanker refueling the aircraft, which is mostly Indian Oil. So that comes under Indian Oil Aviation. So there are many segments these companies, Indian Oil is there. Moreover,
We have a refining capacity of around 80 MMTPA, which is one of the highest in India. And with this refining capacity, we contribute around 33% of the total refining in India. Okay. Besides that, we have a pipeline segment of around 14.6 thousand kilometer product pipeline moving across everywhere. Like we have a pipeline from Koili to Jaipur. Then there is a tap-off point. This tap-off point is at Sirpur. So this terminal is being fed through a pipeline. The product is coming from a pipeline and is further going to Jaipur. So Indian Oil has an asset in pipeline segment also, which is the cheapest mode of transportation. Moving further, there are many segments like I have said, but one thing that we are most proud of is our R&D center, which has a cutting-edge technologies, which we are incorporating in defining the differentiated product. Like you must be knowing, in today's market, you can have the best way to move forward is to have a differentiated product, where your product itself becomes superior to other competitors. It finds a niche market. So Indian Oil R&D Center is recognized for producing these products. One of the main brands that our R&D has is Servo. Lubricant you must be seeing, which goes with the logo World Class Oil. We have a Servo distributors even in Dubai and Singapore and other international locations. So Servo is our brand, which is a product which is R&D is being done at R&D Center. Second, plastic incorporation in bitumen, that is also being tested at Faridabad by our R&D Center. Further, now from energy we are moving to hydrogen. You must have heard or read something energy we want to go to hydrogen, which is a fuel cells. And hydrogen is very costly. Particularly engines are very costly. One truck will cost you 3 crore. Okay, so like hydrogen is a fuel for future. So IOC has also done innovations in these things. We have mixed hydrogen in CNG. CNG is already a cleaner fuel. So we have mixed hydrogen in CNG and it is called as SCNG. SCNG we have tested at our R&D and I think it has got some approval and trucks are being moved on SCNG in NCT, National Capital of Delhi, their region. So these are some of the identity that we carry with IOC, and more of these things you can read in our website, which is iocl.com. Okay, where lot many things about R&D you will get. Okay, like we are in petrochemical also. Okay, we are in solar also. We are in wind power also. So being the gamut is IOC wants to call it as an energy company. Okay. Now, beyond these corporate things, IOC also has a social responsibility. It has been carved out like Indian Army, Indian Railways. Indian Oil was formed in 1962-63 after that 62 war. You know, there was a Nathula war in 1962 which we lost. Then IOC set up the first refinery at Guwahati. And the pipeline was set up from Guwahati to Siliguri. And that provides the logistic end to our military power that in 1967 the same war we won because of our army and support given by Indian Oil. So we are one of the company, rather the only company which is giving winter diesel. That was we are talking about differentiated product, which is different than others. So winter diesel is a diesel which will not freeze at -30. That we are providing to Leh region from our Panipat
and from Bongaigaon refinery it comes to Siliguri and it goes up to our this Indo-China border in Nakula and Nakula. Nakula you must be having the another where the war is, skirmishes, it is called skirmishes are going on. We have also, recently we have also come up with another product that is XP100. XP100 is basically high octane petrol, which has a octane number of 100. Currently, I think in our cars we are using 91 octane. And in 2000, I think in 2007 or 8, when we came up with this 91 octane, previously we were using around 85 octane. So there was a contrast shift in the cars. The cars were more smooth in 91 octane. So consider that now IOC has launched hardly 2 months back. We have launched XP100, which has more octane. Mostly it is required for high racing cars, but it is considered as a luxurious product. Like BMWs and these cars will first be utilizing it. Over the time, when the technology will come into the car segment, that it will also come to find place in the car segments. For energy, I must I must tell you that energy is not like we can completely ban oil or we can completely ban coal and we will be happy with other energy which is more conservative because global warming is the biggest subject. But it is not that. Now, when railway says that we are converting into electric energy, but electric energy is not a primary energy. It is a secondary energy. So primary energy has to be something like coal, oil, wind or solar. So these things are there. So different applications or different processes need different kind of energy. Correct? Like today, all these rockets are going in with these solid fuels, they say. Over the time it will might go into a nuclear energy. Okay. It finds application there. Okay. But nuclear energy you cannot run your car. Okay. So different energy has different applications, different needs. Okay. So you have to take energy with the fuel and the technology you have, all the things in your consideration. Just as I said, more about Indian Oil you can read in the website. Before coming here, I also read your website. And it was happy, that is what I was sharing with Bhargav sir, to find that Gokul and IOC share many common things. Okay. And particularly Saraswati Vandana after a long time, in my Saraswati Sishu Mandir, Jalalabad school days, we used to have it there of Saraswati Vandana. So it was a long time, it was a good thing. And about recruitment, IOC, all officers in IOC are not less than an engineer. All are engineers. IOC takes only engineers, or postgraduate or MBA, but minimum qualification is BTech. Okay, so IOC is one company, not only IOC, there are other PSUs, PGC, SPC, they take engineering students, and which is the minimum criteria. But the another thing is, we are not into our core jobs. Okay, like I am a chemical engineer, for the last 20 years I am doing marketing. Okay, I was a divisional head at Siliguri, now I am handling the state office, particularly bitumen and other products, FTP products. Sir is a mechanical engineer, he is handling a complete terminal. Okay. Though postgraduate people find application in R&D center and refineries, okay, they are into somewhere into their core job, but still in refineries you must be an electrical engineer and you are running a distillation column. Okay. So what we find is basically BTech only gives you a rational thinking. Okay. With that rational thinking you can build up. Need not be the core department, which you must have seen with other colleagues also, seniors also. Okay. With this, I should wind up and hope you will enjoy this session. Thank you. So now, we are not wasting our time because we are waiting for the today's main session by Vikas, Mr. Vikas.
So, before the speech, I thank Dr. Prashant Joshi to come here and give us time. So thank you, sir. He wants to go due to some university work. Thank you, sir. As awareness on the oil and the gas conservation. What do you want from this seminar? कुछ सीखना है या सब लोगों ने बोला अभी जाओ हमें कैसे क्या है? Well, what is the purpose of this seminar? You want to gain something out of it? वो गेन क्या है? देखिए, गेन ऐसा नहीं कि आपकी कोई किताब की चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ. मैं आपको ये रोड टेक्नोलॉजी, व्हाट इज बिटुमेन, वी कांट टीच फॉर दैट मैटर एनीथिंग टू एनीवन. सही है ना? टीचर तो क्लास में पढ़ाते हैं, आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, टीचर ने खबर ना थी तब ने खबर छे. इतना मैं शुरू करूँ छू. गुजराती में नहीं हूँ लेकिन आई एम ट्राइंग टू लर्न. ओके, लर्निंग लैंग्वेजेस इज माय नैक, बट आई कैन अंडरस्टैंड गुजराती फुली ऑलमोस्ट. तो हमारा भी क्या है, कुछ जनरल टॉपिक्स, कुछ जनरल बातें. हो सकता है भाई आपको कभी क्लिक कर जाए. उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ. टाइम की कमी तो नहीं है ना? नहीं. आपको टाइम पता नहीं लगेगा मेरे साथ, ये मेरी गारंटी है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. ऐसे क्या था, देखिए आदमी की लाइफ में ना कहीं से भी चीजें क्लिक कर जाती हैं. जैसे हमने अपने इंजीनियरिंग के अंदर सिविल भी पढ़ी है थोड़ी सी, हालांकि हूँ मैं मैकेनिकल से, लेकिन हमारे यहाँ पर सिविल हल्की सी पढ़ाई जाती थी. अब उसमें क्या होता है, डू वी हैव द चॉकलेट्स टुडे? नो. Huh? You will arrange. You arrange, please. Yeah. That will, add the interest in the audience. I will keep on asking the questions in between. Okay? Those questions will be general questions. I normally don't test the faculties, but I will. So faculties, they don't want to get tested in front of their students. But for me, it's a general topic. General topic. Okay? Pertaining to our country and something pertaining to your branch of study, civil. तो जनरल टॉपिक है. कोई पीपीटी तो मैं बना के इसलिए लेकर आ गया कि आप सोचे कि क्या बोल रहा है, क्यों बोले थे. पीपीटी रहेगा तो मुझे पीपीटी का जरूरत नहीं है. I don't need any PPT for taking my sessions. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये बताइए, आपका ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है, चॉकलेट सर लेकर आ रहे हैं अभी. मैं क्वेश्चन कैसे पूछूंगा, जो आंसर देगा ही विल बी गिवन विद चॉकलेट. इज द डील ओके बेटा? You want to have the chocolates? For that you have to give the answers. And the questions are very simple. Questions are very simple. Life is very simple. It is only the humans who have made the life so complex. There is no waste in the nature. It is only we humans who are creating the waste. You go to jungle, is there any waste in the jungle? Whatever processes we are undergoing, the same processes trees are also undergoing. Are they creating any waste? Whatever waste is being generated by the trees is being utilized by somebody else in the cycle of the nature. Okay? So let's get started. चलिए चालू करते हैं आगे की बात अपनी. देखिए वैसे तो मैं आपको सर बोल रहे थे फ्लेक्सिबल पेमेंट, रिजिड पेमेंट. रिजिड पेमेंट क्या होता है? जैसे जिसको हम लोग कंक्रीट से बनाते हैं. जिसको हम लोग किससे बनाते हैं? कंक्रीट से बनाते हैं. आप सभी लोग सिविल इंजीनियरिंग से हैं? ओके, वेरी गुड. फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ऑल. अच्छा, फोर्थ ईयर के कौन कौन है? थोड़ा हाथ खड़ा करो. फोर्थ ईयर के इधर बैठे हुए हैं. थर्ड ईयर भी इधर ही है और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इधर होगा, है ना? तो आप इसमें डिप्लोमा. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. डिप्लोमा फाइनल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. चलिए सर, पहला सवाल स्टार्ट करें. जस्ट जनरल सवाल है. N20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का मायने क्या होता है? बहुत सिंपल सवाल है.
हर आदमी बोलता है M20 M20, लेकिन है क्या? If somebody asks what is the M20 weight of the concrete, you are going for your interview, you are going for your job, you have to give an explanation what is M20. Yes sir. Keep on sitting. If you want to do some exercises, keep on standing. M20 means अगर हम means 1 mm square Keep on, sir, keep on listening what he is saying. I will keep, if he is not giving the complete answer, I will keep on asking him the questions to make him complete the answer. Yes, sir. 1 mm square का अगर वो हो नहीं सकता, लेकिन हम 1 mm square पर 20 न्यूटन का compressive मतलब उसकी efficiency होगी, compressive strength efficiency. strength होगी 20 किलो न्यूटन पर mm square, वो Tensile दर्शाता है strength. 20 न्यूटन पर mm square. टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, कौन सी स्ट्रेंथ होगी? टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, शियर स्ट्रेंथ होगी, टॉर्सनल स्ट्रेंथ होगी। compressive आपने बोला नहीं ना, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होगी। अच्छा, किसकी होगी? किसकी होगी कॉम्प्रेसिव? मिक्स डिजाइन जो हम बनाते हैं कंक्रीट, डिजाइन मिक्स बनाते हैं उसकी। कब हम लोग उसको टेस्ट करते हैं? किसके ऊपर टेस्ट करते हैं? Will we test it, by putting this tape? We are testing strength on something. What is that something? Let him answer. concrete Huh? concrete cube, the Concrete cube. Very good. What is the size of the cube? 150 by 150 by 150 mm. 150 kilometer. 150 mm बोला. 150 millimeter. Very good. He is giving the answer. Earlier he did not say the answer. Now he is giving. Yeah. 150 by. After how many days? Say if I am casting the concrete today, will I test the cube next day? 28 28 days. 28 days. So 28 days तक what we will do? We will cure it in the air, or what we will do? water Is there a IS code according to which we are doing the curing of those cubes which we are testing for the strength? 4 5 6 Now, IS 456 is the code for RC. reinforced cement concrete, for cement concrete works. Yeah. Now, can you sum up the entire things which we have tell? आप सब चीजों को आप जोड़ सकते हो, माला बना सकते हो उसकी। माला बनाओगे तभी तो किसी को पहनाओगे। हाँ, बनाइए, माला बनाइए। M20 grade of the concrete is that concrete from which a cube of 150 mm by 150 mm by 150 mm, when tested for the compressive strength, after 28 days of the curing, will give a minimum compressive strength of 20 Newton per mm square. How much megapascal is 20 Newton per mm square equal to? Jai Shri Ram. Are you getting my question? You are my favorite student. Yeah. 20 Newton per mm square is equal to how many megapascals? Any one of you who can raise a hand, that will be given the chocolate. Chocho, are you doing some cooking? Very good. Clapping for him. He was, very serious contender for the chocolate. Okay, 20 megapascal. 1 megapascal is equal to 1 Newton per mm square. Megapascal का को कन्वर्ट करिए SI यूनिट्स में. What is megapascal? Mega is 10 की power 6 and what is pascal? Newton per meter square. तो mm स्क्वायर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 अपॉन करके आएगा, फिर वो ऊपर जाएगा तो मेगा बन जाएगा. ओके, सो मेगा 20 megapascal is equal to 20 Newton per mm square. Both are the same units. जैसे हम लोग बोलते हैं कि 1 किलोमीटर is equal to 1.6 miles. 1 kilogram is equal to 1000 grams. 1 kilogram force per centimeter square is equal to 14.4 psi, pound force per square inch.
So there has to be unit of the force on the numerator and the unit of the area on the denominator. So this was our warm-up session, sir. We will keep on warming up like this. But they are very serious. So you should enjoy the session. Okay? Enjoy the interaction basically. Interaction. That is more important. You know there is one thing which is called as communication. Communication. I would like that the board if can be arranged. Board. Why board? अरे इस बोर्ड इज देयर नहीं इसको मिटाओ नहीं मैं इसके ऊपर लेके गाड़ी चलाते हैं मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे या फॉर दैट मैटर अगर मैं जब गाड़ी चलाता हूँ यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से ग्रेटर नोएडा टू आगरा ये क्या है पूरा रिजिड पेवमेंट है रिजिड पेवमेंट यानी पूरा कंक्रीट का पेवमेंट बना हुआ है वहां पर क्या है टायर की एक लिमिट एक वहां पर स्पीड का एक लिमिट लिखा रहता है और एक साथ में एक क्वेश्चन का बोर्ड रहता है कि आपकी गाड़ी का टायर ब्लास्ट हो जाएगा आप इससे ज्यादा गाड़ी की स्पीड ना रखें ऐसा क्यों ये जो मेरे बिटुमेन डामर की जो सड़कें बनी होती हैं उसके साथ ऐसा नहीं होता है वहां पर ऐसा बोर्ड नहीं लिखा होगा कि आपकी गाड़ी का टायर ब्लास्ट हो जाएगा गाड़ी का टायर ब्लास्ट हो जाएगा ये बोर्ड में नहीं लिखा होगा क्या लिखा होगा गाड़ी की गति सीमा लिखी होगी जैसे बड़ौदा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे कब बना था वो इंडिया का सबसे पहला एक्सप्रेसवे है उसका नाम क्या है NE1 नेशनल एक्सप्रेसवे 1 आप लोग सब सिविल इंजीनियरिंग से हैं बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से आज बात करके ये बताइए जो नेशनल एक्सप्रेसवे होते हैं उसमें जो किलोमीटर स्टोन लगा होता है उस किलोमीटर स्टोन के ऊपर किस कलर का ये रहता है कौन सी ड्राइंग बन रही है व्हाट दिस इज कॉल्ड बोलो क्या बोलते हैं इसको जो 45 डिग्री एंगल पर बनती है आइसोमेट्रिक तो ये जो आइसोमेट्रिक जो ड्राइंग बन रही है ये ना किलोमीटर तो ऐसा रहता है हमारा तो नेशनल एक्सप्रेसवे जो होता है उसके ऊपर ये किस कलर का होता है अभी रुको पहला आंसर आपसे ही है एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट तो ये एक्सप्रेसवे पे किस कलर का होता है आप वो भी लाल टी शर्ट येलो हाँ बहुत जल्दी कर दिया ब्लू वेरी गुड एक चॉकलेट पहले छोटू खा चुका है इसको दिया जाए इन्होंने बहुत अच्छा सवाल का आंसर दिया 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मेगा पास्कल और दूसरा इनको लीजिए वेरी गुड अब बाकी के आंसर पर नहीं मिलेगी चॉकलेट ये होता है ब्लू कलर का नेशनल हाईवे किस कलर का होता है पत्थर किलोमीटर स्टोन येलो वेरी गुड और स्टेट हाईवे ग्रीन और जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स होती हैं वो कभी ग्रीन से रहती है कुछ स्टेट में रेड कलर की होती है ठीक है ये आपको पता होना चाहिए बाकी चेने उस पर लिखा रहता है सारी बातें तो हमारा सवाल क्या था कि जो कंक्रीट का हाईवे होता है वहां पर एक बोर्ड लगा रहता है कि आप अपनी गाड़ी को 80 या 100 की स्पीड से ज्यादा ना चलाएं आपकी गाड़ी का टायर बस्ट हो सकता है ये जो डामर की रोड होती है उसमें क्यों नहीं लिखा रहता है सब लोग सिविल से ही इस पर इस क्वेश्चन को रजिस्टर करिएगा बाद में इस पर आएंगे ओके कंक्रीट की रोड में गाड़ी स्मूथ नहीं चलती है बिटुमिनस रोड पर गाड़ी स्मूथ चलती है डामर की जो रोड बनती है तो देखिए क्या है
बिटुमिनस जो रोड बनता है डामर, उसमें हम लोग किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं बताओ बेटा? हाँ, किस किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? बिटुमिन का इस्तेमाल करते हैं। और किसका इस्तेमाल करते हैं? एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स होते हैं, बाइंडर्स होते हैं, एग्रीगेट्स होते हैं। और भी चीजें अगर कुछ हम लोग मिलाना चाहें तो वो हम लोग उसके अंदर मिलाते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट। बट मेन चीज क्या होता है? एग्रीगेट्स और आपका बाइंडर। एग्रीगेट जो है उसके ऊपर मेरा सवाल है, इसीलिए मैं आपको एग्रीगेट बोल रहा हूं। ये बताइए फ्लेकीनेस इंडेक्स हम लोग किसको बोलते हैं? एग्रीगेट के रिलेशन में ये वर्ड है, फ्लेकीनेस इंडेक्स। कोई भी नाम सुना है आपने? सुना है आपने? सुना है तो जानोगे कब? नाम सुना है तो जानोगे कब? और किसी ने नाम सुना है? आपने सुना है? आप चाय लेकर आए थे ना प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में? आपने सुना है? सुना है? क्या होता है बताओ? देखिए थोड़ा सा सुनिए, जो भी हम लोग बिटुमिनस रोड्स मेरा बनता है उसमें बिटुमिन की कैरेक्टरिस्टिक्स और जो एग्रीगेट है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर वो दोनों अच्छी होंगी तो रोड अच्छी चलेगी। अभी हमने ये नहीं जाना है कि बिटुमिन होता क्या है, ये सिर्फ वार्म अप चल रहा है। चॉकलेट सर लेकर आए थे, उसका इंतजार चल रहा था। फ्लेकीनेस इंडेक्स किसको बोलते हैं? फ्लेकीनेस इंडेक्स का मतलब ये है कि उसका एग्रीगेट का लेंथ और एग्रीगेट का जो विड्थ है उन दोनों का जो रेशियो है वो 1:3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप जैसे कहीं पर कुछ पत्थर पड़ा हुआ है, एग्रीगेट पड़ा हुआ है, अगर जो लंबाई चौड़ाई का 3 टाइम्स से ज्यादा है तो आप अगर ऐसे एग्रीगेट के ऊपर कुछ मारेंगे, जोर से दूसरा पत्थर मारेंगे तो ये एग्रीगेट आपका टूट जाएगा। फ्लेकी यानी जैसे आपने देखा होगा जो कारपेंटर होता है वो जब लकड़ी के ऊपर अपना जब वुडन प्लेट चलाता है तो जो लकड़ी निकलती है चप्पट चप्पट करके जो निकलती है, दे आर कॉल्ड एज फ्लेक्स। दूसरा आपके मेहसाणा यहाँ सिद्धपुर गुजरात में बहुत कॉमन है बर्फ का गोला। वो जो बर्फ को घिसता है उसमें जो बर्फ गिरती है पतली पतली लेयर्स के अंदर, दे आर कॉल्ड एज आइस फ्लेक्स। और इसी फ्लेक्स के नाम पर एक ये भी होती है गोल्ड फ्लेक। ओके, तो फ्लेक्स, तो फ्लेकीनेस इंडेक्स यानी वो फ्लैट कितना है, जो जितना ज्यादा फ्लैट होगा वो जब ऊपर से वाइकुलर लोड आएगा और सबग्रेड के अंदर अगर फ्लेकी मटेरियल है, फ्लेकी यानी जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना से ज्यादा है, तो वो टूटने के उसके चांसेस हैं। तो हम लोग इस तरह के पत्थर को यूज नहीं करते हैं। इसी बात के ऊपर चलते चलते मेरे मन में जो चीजें आ रही हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है प्रोजेक्ट वर्क्स का। दूसरा क्या होता है, आपने देखा होगा पहले कि जो हम लोग पत्थर तोड़ते थे वो हम लोग क्या है कि बड़ा पत्थर लेकर आते थे जहां पर रोड बनती थी वहां पर, और एक आपके सबरकांठा एरिया, बाकी आपका दाहोद गोधरा एरिया, फिर अगर किसी को मालूम है तो अलीराजपुर नाम की जगह आती है, सब ट्राइबल एरिया से ही। यहाँ के लोगों, यहाँ के गैंग आते थे पत्थर तोड़ने के लिए, और वो क्या है पत्थर को ऐसा नहीं कि वो जहां देखेगा वही हथौड़ा मारेगा, उसको मालूम है कि कहां पर हथौड़ा मारना है और वो पत्थर टूटेगा। जब हम लोग क्रशर का स्टोन जब यूज करते हैं, जब हम लोग मैकेनिकल मीन से बड़ी रॉक से जब एग्रीगेट बनाते हैं, तो जो स्टोन है, जो बड़ा जो रॉक है, उसके अंदर जो वीक प्लेन है, वीक प्लेन, हम लोग उसके अलोंग ना काट के रैंडमली कहीं से भी क्रशर हमको एग्रीगेट दे देता है। लेकिन जब वो जो आदमी है, जो पत्थर तोड़ने वाला जो गैंग है, वो आदमी क्या करता है कि उसको नजर आता है कि पत्थर के अंदर कहां पर वीक प्लेन है, वो उसके अक्रॉस मार के उस वीक प्लेन से ही बड़े पत्थर को छोटा पत्थर बनाता है, फिर वो एग्रीगेट को बराबर तोड़ता है।
तो वैसे पत्थर के अंदर वीक एग्रीगेट्स कभी भी आते नहीं। तो पहले क्या होता था, आज से 15-20 साल पहले, जब स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन इतना ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं था, तो हम लोग साइट पर ही आके एग्रीगेट्स को तोड़ा करते थे। उसमें क्या होता है कि जो नेचुरल वीक प्लेन है उसके अलोंग वो आदमी उसको तोड़ा करता था, उसको मालूम था कि वीक प्लेन पत्थर का कहां से जाता है। तो जब क्या होगा, जब वैसा होगा तो वीक प्लेन एग्रीगेट्स के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वीक प्लेन मैंने ऑलरेडी बाहर ही तोड़ दिया है। चलिए साहब आगे चलते हैं। ये जो डामर है, बिटुमिन डामर, ये जो बिटुमिन है, डामर है, ये क्या जमीन के अंदर से पानी की तरह निकल जाता है? कि मैं सिद्धपुर में गया, मैंने हवन करवाया, लोगों को बुलाया, देखा कि 51 लोगों को बुलाया, बोला डामर नहीं निकला। बोला चलो 501 लोगों का खाना करते हैं। बोला महाराज इस बार हम दक्षिणा ज्यादा देंगे, आप जमीन से डामर निकाल के दे दीजिए। तो क्या जमीन से डामर निकल कर आता है? तो डामर कैसे बनता है, कहाँ बनता है डामर, क्या आपका अंडरस्टैंडिंग है? ये जनरल चर्चा चल रही है। मैं आप लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, न मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ। मैं तो सिर्फ आपके अंदर इस फील्ड के लिए, जो आपकी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, मैं जो आपको बोल रहा था कि आपको नहीं मालूम आगे वाली लाइफ में हो सकता है कि जो मैं आपको आज जो सेशन के अंदर जो इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ, वही बात कुछ आपकी क्लिक कर जाए, आपके जॉब के लिए हो जाता है, हो जाता है। तो मेरा एक सवाल उसके बीच में रह गया था, ये बताइए, एक दोबारा आएंगे इस पर। ये जैसे मेरा ईंट है, एक ईंट का मेरा कोर्स है, एक मैंने लंबी ईंटें बिछा रखी हैं और फिर इसके ऊपर मैंने छोटी ईंटें बिछा रखी हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मुझे पहले पूछने दो, बोलो भी, मुझे पहले कैंडिडेट्स तलाशने दो, जो आदमी छुप कर, चाय वाले भैया, प्रिंसिपल साहब के कमरे में चाय लेकर आए थे। हाँ बोलो, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, किस टाइप का बॉन्ड बोलते हैं? हाँ, इंग्लिश बॉन्ड, ठीक है। दिस इज इंग्लिश बॉन्ड, यानी कि मैंने स्ट्रेचर को एक साथ रखा हुआ है, हेडर्स को मैंने एक साथ रखा, जिसको इंग्लिश बॉन्ड। तो इसमें क्या था, एक मैकेनिकल का लड़का, जो मैं आपको शायद बात बता रहा था, फिर बात कहीं कट गई थी, तो उसने देखा कि कहीं पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ये जो एडजेसेंट जो कोर्सेस हैं, इसके अंदर जॉइंट एक दूसरे के ऊपर आता है। अल्टरनेट जो कोर्सेस हैं, उसके अंदर जो ये जॉइंट है वो कट नहीं रहा है, स्टैगर नहीं हो रहा है, जैसे मैंने बनाया है यहाँ पर। तो ये तो वीक जॉइंट हो गया, ये वीक जॉइंट हो गया ना। ये जो जॉइंट है कटना चाहिए, तो ये ऐसे आके ये ऐसे आना चाहिए, तो यहाँ जॉइंट आना चाहिए। तो जॉइंट्स इन अल्टरनेट कोर्सेस आर गेटिंग ब्रोकन, they should be broken, otherwise that particular line will act as a weak plane and the wall will get cracked from that particular location। तो ये उसने मैकेनिकल वाले लड़के ने इसको पढ़ लिया था। वो जब अपना इंटरव्यू देने गया तो उसने वहां पर देखा कि साहब ये आपकी बाउंड्री वॉल तो गलत बन रही है, इसमें उसने ध्यान नहीं दिया। ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं है, वो ध्यान नहीं दिया। तो इसीलिए क्या है कि आप जो चर्चा जो मैं आपसे कर रहा हूँ, ये एक आपके लिए इस फील्ड में एक इंटरेस्ट क्रिएट करने वाली बात है, ताकि आपको कुछ याद रहेगा, ये मेरी गारंटी है, कुछ आपको याद रहेगा और कुछ आप जाकर पढ़ेंगे। ये इस इंटरेक्शन का पर्पस है। दूसरा क्या कि अपने फील्ड से रिलेटेड भी दूसरी चीजों को अच्छी तरह जानने से हमारा भी ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, हमारा भी उससे ग्रोथ होती है। तो हमको ये सारी चीजें यदा कदा अपनी फील्ड से बाहर भी निकलकर कभी कभी देखना चाहिए। चलिए, तो बिटुमिन कैसे बनता है साहब, डामर बनता कैसे है, डामर कहाँ बनता है, बताइए बेटा। पेट्रोलियम की भट्टी में जो लास्ट वाला कचरा है वो। आप राजस्थान के रहने वाले हो? नहीं, आपने क्या रुमाल बांध रखा है, उसमें जैसे राजस्थान से ना फौज में बहुत लोग जाते हैं। हाँ, क्या बोल रहे? पेट्रोलियम की भट्टी में जो लास्ट वाला कचरा होता है। अच्छा, भट्टी कितनी बड़ी होती है? कोई भी कितनी बड़ी भट्टी होती है? आप बताओ छल्ले वाले भैया। चलो, बहुत अच्छी बात, आपने तो सही बताया है। लास्ट वाला कचरा नहीं, कचरा इसकी रोड बन रही है और इतनी रोड बन रही है, इतना रिक्वायरमेंट है कि हम लोग इंडिया के अंदर उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं।
तो यही कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, जो चर्चा चल रही है, बाकी आपका जैसा इंटरेस्ट होगा उसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है सर। तो देखिए एक बात तो आप ये समझ लीजिए कि जो बिटुमिन है वो इन्होंने एकदम सही बोला, हम लोगों के पास कच्चा तेल आता है, क्रूड ऑयल जिसको हम लोग बोलते हैं क्रूड ऑयल। क्योंकि ये जो हमारा सेशन है आज का, जो आपका इंट्रोडक्शन है, वो ये भी है क्या, सक्षम। क्या लिखा है उसके नीचे, किसी ने पढ़ा? सक्षम क्या है बताओ? सक्षम क्या चीज है? सक्षम वो बोर्ड किस चीज का लगा हुआ है? अच्छा ये बीच वाला बोर्ड किसी ने पढ़ा था? ये पढ़ा था बीच में जो लिखा हुआ है, आपने पढ़ा था? क्या लिखा है बताओ? किसका सेमिनार है? इस आपके नीचे नहीं पढ़ो, इधर में देखो, मेरे आंखों में देखो क्या लिखा है, अभी पढ़ रहे हो तुम, ऐसा नहीं। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ? ये क्या लिखा है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा संरक्षण क्षमता महोत्सव, संरक्षण क्षमता महोत्सव, संरक्षण क्षमता महोत्सव। संरक्षण से आ गया स, और क्षमता से आ गया छ, और म से आ गया म, तो क्या बन गया? सक्षम। और ये लिखा है पीसीआरए, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, और ये लिखा है ओएनजीसी, ओआईडीबी, ओएनजीसी, ईआईएल, सीपीसीएल, गेल, एचपीसीएल, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल। ऐसा नहीं कि इंडियन ऑयल, हम लोग इंडियन ऑयल से तो हमने इसको सबसे ऊपर इंडियन ऑयल लिखा हुआ है। इंडियन ऑयल इंडिया की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है, और आज से 1 साल पहले वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों को मिलाकर देश की सबसे बड़ी कंपनी थी। फॉर्च्यून 500 के अंदर हम लोगों का रैंकिंग ऑल ओवर इंडिया सबसे ज्यादा था। लास्ट ईयर ये जो जियो वीओ आने से रिलायंस का टर्नओवर हमसे ज्यादा हो गया, इसीलिए इंडियन ऑयल सबसे ऊपर लिखा हुआ है। आपके जो साहब लोग हैं, ये सिद्धपुर में आपके बैठते हैं, गौरव साहब, ये इंडियन ऑयल के यहाँ पर सिद्धपुर के अंदर रिप्रेजेंटेटिव हैं ये। तो इंडियन ऑयल, सारी तेल कंपनियों के इसमें नाम लिखे हुए। तो ये सक्षम है किस चीज के बारे में? क्या है सक्षम? कोई भी आदमी एक चॉकलेट मिलेगी, कोई भी। आजकल देखा है आपने, एफएम सुनते हैं? एफएम सुनते हैं कभी? आजकल उसमें ऐड आता है, क्या ऐड आता है कि एक लड़का अपने पापा के साथ कार के अंदर बैठा हुआ है, और उसके पापा ने ट्रैफिक सिग्नल पे कार को स्विच ऑफ नहीं किया इंजन को। तो वो बोलता है, पापा मैं सोच रहा हूँ कि मैं बड़ा होकर एक साइकिल पंचर की दुकान खोलूंगा। सुना है ऐड एफएम में? हाँ। तो वो बोलता है, बेटा क्यों? वो बोला, पापा अगर आप सब लोग इतना तेल अभी वेस्ट कर दोगे तो आगे जाकर तेल बचेगा ही, तो फिर मुझे साइकिल पंचर की दुकान खोलनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो पीसीआरए है, इसका फुल फॉर्म क्या है? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, पीसीआरए। ये पीसीआरए कब बना? 1978 के अंदर। क्यों बना? कि वो इंडस्ट्रीज के अंदर जाकर ऑडिट करे, वो एग्रीकल्चर जो हमारा फील्ड है, किसान लोग किस टाइप के इक्विपमेंट को यूज करते हैं, उसके अंदर क्या चेंजेस होकर एफिशिएंट फ्यूल का इस्तेमाल हो। फिर हमारे हाउस होल्ड, घरों के अंदर आज एक पीसीआरए का टीवी पर एक ऐड आता है कि वो एक एलपीजी का एक डिलीवरी बॉय आता है, और उसने बोला कि आप कुकर का इस्तेमाल करिए तो आपकी गैस का पैसा तो वैसे ही निकल कर आ गया। देखा ये ऐड? ये ऐड एक आता है, इस टाइप के ऐड आते हैं। वो 15 जनवरी से लेके 15 फरवरी के बीच में ही आते हैं। पहले क्या था? दिस वाज कॉल्ड एज OCF, ऑयल कंजर्वेशन फोर्टनाइट। फोर्टनाइट में बेटा कितने दिन होते हैं? आप बताओ गुलाबी शर्ट, एक फोर्टनाइट में कितने दिन होते हैं? I have the pulse of the audience with me, you know what I am saying. एक फोर्टनाइट में कितने दिन होते हैं? जैसे मैंने बोला ना, पीसीआरए पहले ऑयल कंजर्वेशन फोर्टनाइट ऑब्जर्व करता था। फिर मैंने आपसे पूछा कि एक फोर्टनाइट में कितने दिन होते हैं? 15 दिन। पखवाड़ा 15 दिन, आधा महीना 15 दिन पखवाड़ा। ओके, फोर्टनाइट। तो पहले क्या था कि ये 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक हम लोग ये ऑयल कंजर्वेशन फोर्टनाइट मनाया करते थे। फिर रिसेंटली 4-5 साल से ये हमने फोर्टनाइट को चेंज करके इसको हमने मंथली कर दिया है। तो 15 जनवरी से 15 फरवरी तक हम लोग
ऑयल कंजर्वेशन के लिए, क्या बोला, ऑयल कंजर्वेशन के लिए पूरे इंडिया के अंदर जितने भी स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहां पर जाकर अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। ये अवेयरनेस प्रोग्राम स्कूल कॉलेजेस में जाकर क्यों करते हैं, उसके पीछे एक कारण है। उसके पहले और हमको आना पड़ेगा कि हम लोग ये कंजर्वेशन करते ही क्यों हैं। कंजर्वेशन यानी चीज को इस्तेमाल तो करना है, लेकिन किफायती ढंग से इस्तेमाल करना है। तो ये कंजर्वेशन हम लोग करते क्यों हैं, ये हमारा विषय है। तो बताइए, हम लोग किसी भी चीज का कंजर्वेशन कब करेंगे? जनरल आंसर दीजिए। हम लोग किसी भी चीज का कंजर्वेशन कब करेंगे? कोई भी, हम लोग किसी भी चीज का, जिस आदमी के पास पैसे 500 रुपए जेब में है, जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जैसे हॉस्टल में रहते हैं, तो हॉस्टल में जब आप रहते हैं तो आपने देखा कि यार इस महीने हमने 1 तारीख से 10 तारीख तक पैसा पूरा फूंक दिया, दोस्तों को पिक्चर दिखा दी, उसने मुझे असाइनमेंट दिया था कॉपी करने के लिए, है ना, तो आपने पैसा खर्च कर दिया, आपके घर से लिमिटेड पैसा है, तो आप बाकी जो 20 दिन है वो आप पैसे को कैसे इस्तेमाल करोगे? जुडिशियसली आप यूज करोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा अब कम रह गया है। जिस महीने आपके पास खूब पैसा होगा, आप दूसरों की पैसे पे पार्टी करोगे, तो आपके पास पैसा उस महीने बहुत बचेगा, तो फिर आप अगले 10 दिन एकदम दरिया दिली से अपना पैसा पड़ाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा बहुत है। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ? ये ऑयल कंजर्वेशन फोर्टनाइट हम लोग पहले क्यों करते थे, या हम लोग ये ऑयल कंजर्वेशन मंथ क्यों ऑब्जर्व करते हैं? इसका नाम जो सक्षम है, संरक्षण क्षमता महोत्सव, इसको हमने महोत्सव क्यों बना दिया? महोत्सव यानी मास मूवमेंट में क्यों तब्दील कर दिया? अब हम लोग अपने बेसिक सवाल पर आते हैं कि इंडिया के अंदर, भारत के अंदर हर साल कितना तेल का रिक्वायरमेंट होता है, और हम लोग उस तेल का कितना प्रतिशत तेल हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं? ये अपना सवाल है। सर ने बोला था एक चीज कि हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है वो 80 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम है, तो एमएमटीपीए सर ने यूज किया था। एमएमटीपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? मिलियन मैट्रिक टन पर एनम, यानी मिलियन टन पर एनम। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं बेटा गुलाबी शर्ट? 10 लाख। तो 10 लाख इंटू 1 टन, वो 1 साल में 1 एमएमटीपी का मतलब ये हो गया। तो हम लोग इंडिया के अंदर पूरे साल में हम लोग कितना तेल प्यूरिफाई करते हैं, या अपना कितना तेल हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, ये एमएमटीपीए यूनिट आपको पता रहना चाहिए, मिलियन मैट्रिक टन्स पर एनम। आप जब भी कभी एक बात पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि इंडियन ऑयल इज इंक्रीजिंग the refining capacity of its Koili refinery from 13.7 MMTPA to 18 MMTPA. या पढ़ेंगे the refining capacity of the Reliance latest refinery is 33 MMTPA. तो MMTPA आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मिलियन मैट्रिक टन्स पर एनम। तो हम लोग देश में हर साल कितना हम लोग तेल जो है प्यूरिफाई करते हैं? 263.5 मिलियन मैट्रिक टन पर, इतना हम लोग प्यूरिफाई करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसको प्यूरिफाई करने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो हम लोग बाहर से कितना लेकर आते हैं? क्योंकि मेरे कच्चे तेल से ही डामर बनता है, कच्चे तेल से ही डामर बनता है, तो इसका हम लोग कितना परसेंट तेल बाहर से लेकर आते हैं? क्लोज टू ऑन एन एवरेज 85%। किसी साल ये 87% भी हम लोग अपना टोटल डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट का बाहर से इंपोर्ट करते हैं, 87%। किसी साल हम लोग 83-84% भी करते हैं। तो ऑन एन एवरेज कितना हम लोग तेल बाहर से इंपोर्ट करते हैं? 85%। 85% ऑयल इज इंपोर्टेड, हम लोग बाहर से लेकर आते हैं। अगर आज की तारीख में ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, नाइजीरिया वहां पर कुछ हो जाता है तो हमारी तेल की सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट होने लगती है।
जब वो ऑब्स्ट्रक्ट होने लगेगी तो मेरे जो यूनिवर्सिटी में लाइट जल रही है वो नहीं चलेगी। अगर वो किसी वैसे पावर प्लांट से बिजली आती है जहां पर मैं फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करता हूं, पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करता हूं, आप समझ रहे हैं ना, या ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर अफेक्ट हो जाएगा, यहां से वहां माल नहीं जाएगा। अगर आप रेनिफिकेशन खुद समझिए, जब हम लोग 85% रिक्वायरमेंट अपनी बाहर से पूरी करते हैं तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, कंजर्वेशन, उसी चीज का जुडिशियस यूज करना। ठीक है, आगे हम लोग और स्लाइड्स के अंदर आएंगे। यहां पर मैं एक बात आपको बता दूं, ये 263.5 हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी है। रिफाइनिंग कैपेसिटी में रिफाइनिंग क्वांटिटी है और हमारा कैपेसिटी कितना है 249.5 MMTPA। जैसे बोलते हैं ना किसी रिफाइनरी की कैपेसिटी 13.5 है लेकिन उसने उस साल 13.8 तेल साफ कर दिया। मथुरा रिफाइनरी की कैपेसिटी 8 MMTPA है, वो 9.7 के आसपास तेल को बना देता है कभी। ठीक है ना, हमारे देश में रिक्वायरमेंट कितना है तेल का 213 MMTPA, यानी कि जो रिक्वायरमेंट है उससे मैं करीब 50 MMTPA तेल ज्यादा प्रोड्यूस करता हूं अपने कंट्री के अंदर। वो हम लोग क्यों प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जैसे मुझे एलपीजी गैस चाहिए तो हमारे देश में सिर्फ हमारे देश का एलपीजी का जो एलपीजी समझते हैं, एलपीजी क्या बताओ, सारी क्लास बोल रही है। हाँ, गैस है गैस, कौन सी गैस जो खाना पकाने के लिए यूज करते हैं। बहुत बढ़िया, उसमें क्या होता है गैस के अंदर, नहीं ये थोड़ा सा जानना होगा ना, तभी तो इस सेशन का फायदा है। मैं कुछ भी आके यहाँ बोल के चला जाऊँ उससे क्या मतलब है, मैं सोच रहा हूँ आपने इतना चल करके यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग। या इसीलिए कुछ बहुत हैवी कंटेंट नहीं है। कौन सी गैस होती है कोई बताएगा? इतनी देर में तो यार आप लोग फोन में गूगल कर ले। आप क्या कर रहे हो बेटा, आपके हाथ में फोन है? हाँ, गूगल कर लिया करो, मुझे तो बोल रहा हूँ मैं वहां पूछ रहा हूँ इतनी देर में तो इस लाइन को गूगल करके बोला यस सर, आंसर फ्रॉम आवर साइड वी नॉट टॉकिंग। हाँ, एलपीजी गैस में कौन कौन सी गैसेस होती है? आपके यहाँ पर मेहसाणा में सीएनजी का स्टेशन होगा, है? अरे बोलो है कि नहीं है? उसमें कौन सी गैस यूज होती है? सीएनजी यानी कौन सी गैस, एलपीजी यानी कौन सी गैस? दोनों आंसर पे अखिल सिंगला साहब चॉकलेट बनती है। हाँ सर, मैं थोड़ा सा आपके बीच में आता हूँ, तो रक्षा कवच पहनना होगा। हाँ जी सर, चाय वाले भी एलपीजी गैस में कौन सी दो गैसेस होती हैं और जो सीएनजी स्टेशन है वहां पर कौन सी गैस होती है? एलपीजी में मीथेन होती है। और कोई आंसर जल्दी से बताओ ताकि आगे बढ़े हम लोग। पता लगा? Finally, you can also please give in the answers if you wish to. If you wish to, you can also give the answers. Yeah. है? नहीं, एसिटिलिक नहीं होती। एलपीजी जो गैस है सर ने बताया था, इंडेन हमारा ब्रांड, इंडेन देखा, इंडेन का मतलब क्या है? जैसे जो गैस होती है, जितनी भी गैस होती है वो क्या होती है? मीथेन। मीथेन ऐसा होता है ना, ये होता है। फिर ईथेन, और क्या होता है फिर? प्रोपेन, एन। आप लोग हम लोगों को नमस्ते कर रहे हैं, मैं उसको मिटा रहा हूँ, सॉरी। अब आप लोग हमको नमस्ते कर रहे हैं, मैं उसको मिटा रहा हूँ। फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन, एन। तो ऐसे ही जो इंडियन ऑयल की चलने वाली गैस है, IND फॉर इंडियन ऑयल और ANE फॉर ये यहां से
इंडेन, ऐसे इंडेन बनता है, समझ गए? तो एलपीजी गैस में कौन सी दो गैसेस होती हैं? ये वाली, प्रोपेन और ब्यूटेन। आज का लर्निंग यही है कि एलपीजी के अंदर दो गैसेस कौन सी होती हैं? प्रोपेन और ब्यूटेन। कितना कितना परसेंटेज में होता है? 60% प्रोपेन, 40% ब्यूटेन। जैसे जैसे हम लोग यहाँ ऊपर से नीचे आते जाते हैं, गैस भारी होती जाती है। मीथेन में कितने कार्बन एटम होते हैं? क्या होता है फॉर्मूला? CH4, एक कार्बन एटम। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6, प्रोपेन C3H8, बुटेन C4H10, पेंटेन C5H12। ओके, तो अब जो गैस, जरा गौर फरमाइएगा, जो गैस नेचुरली यानी जो अपने आप ही स्वतः बिना किसी एक्सटर्नल कार्य के, जब भी हम लोग कोई तेल का कुआं कुछ भी खोदते हैं, तो जो गैस अपने आप ही बाहर निकलकर आ जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल गैस। वो कौन सी गैस होगी? जो सबसे हल्की होगी, वो सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा बाहर निकलेगी। तो जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि जो सीएनजी स्टेशन होते हैं, सीएनजी का क्या फुल फॉर्म है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। जो गैस हमारे घरों में खाना बनाने के लिए आती है पाइप के थ्रू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीएनजी, पाइप नेचुरल गैस। जब यही गैस कतार से इंडिया आती है, कतार से, ऑस्ट्रेलिया से जब इंडिया आती है, गैस कौन सी है? नेचुरल गैस। यानी गैस कौन सी है? मीथेन। जब वो कतार से इंडिया आती है तो वो लिक्विड बनकर आती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। समझ गया? एलपीजी जो गैस जो सिलेंडर के अंदर है, वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होती है। आप सभी लोग माशाल्लाह 12th क्लास पढ़े हुए हैं, 12th क्लास पढ़ा है ना, तभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना, या बिना 12th के इंजीनियरिंग? आई एम सॉरी आई सेड करेक्टेड फॉर दिस, बट अगर आपने डिप्लोमा भी पढ़ रखा है, तब भी आपने कुछ 11th 12th की तो केमिस्ट्री तो पढ़ी होगी ना। तो उस केमिस्ट्री के अंदर आपने कुछ लॉस भी पढ़े होंगे, कुछ गैस के लॉस, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, इतना अच्छा आंसर, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसेक लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ये आपने सारे के सारे लॉस पढ़े होंगे। तो आपने वहां पर देखा होगा, अगर किसी भी गैस को मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा? उसको या तो मैं कंप्रेस कर दूं, यानी मैं उसके ऊपर प्रेशर को बढ़ा दूं, या दूसरा मैं क्या करूं? उस गैस को ठंडा कर दूं। मैं प्रेशर ना लगाऊं, मैं किसी गैस को ठंडा कर दूं। तो क्या होगा? जब ठंडी होगी तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी? गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने का फायदा क्या होता है? कोई भी आंसर दीजिए, वेग आंसर दीजिए। किसी भी गैस को मैं लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो क्या फायदा होता है? ट्रांसफर फ्लूइड फॉर्म में। उससे क्या एडवांटेज हो गया? उससे एडवांटेज ये हो गया कि अगर मान लीजिए इस पूरे कमरे की एयर है और मैं उस एयर को सक कर लूं और मैं हाई प्रेशर पे कर दूंगा, तो हो सकता है कि वो पूरी की पूरी गैस आपके इस माइक के अंदर आ जाए। वॉल्यूम कम, हम लोग इसको स्पेस इसका बहुत कम कर देते हैं। तो जो गैस मेरी कतार से नेचुरल गैस जो जहाजों के अंदर आती है, दे आर कॉल्ड एज एलएनजी शिप्स, एलएनजी वेसल्स। उसमें मैं नेचुरल गैस को -63 डिग्री पर कूल करता हूं। कितना बताया? -63 डिग्री पर कूल करता हूं। वहां पर वो क्या बन जाता है? वो लिक्विड बन जाती है गैस। तो मैं नेचुरल गैस को 680 टाइम कम वॉल्यूम में लेके आ जाता हूं उसको लिक्विड करने के बाद। इसी प्रकार से
हमारे जो एलपीजी के सिलेंडर होते हैं उसके अंदर मैं उसको ठंडा नहीं रख सकता हूँ क्योंकि वो तो बाहर एयर में रखा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ उसको कंप्रेस कर देता हूँ। उसके अंदर कितना प्रेशर होता है, 5.5 kg प्रेशर होता है एलपीजी सिलेंडर के अंदर। तो उस प्रेशर में जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो मेरे नोजल से गैस की नोब से बाहर आती है तो एक वॉल्यूम एलपीजी का वो 280 टाइम्स आकर बाहर एक्सपेंड हो जाता है। बात क्लियर है इतनी? तो हम लोग कंजर्वेशन फोर्टनाइट पहले मनाते थे, अभी हम लोग इसको एज ए मूवमेंट सेलिब्रेट करते हैं, एज ए महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका पर्पस क्या है, जुडिशियस यूज करना। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज धरती के अंदर सीमित हैं। हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट का 85% तेल बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इसी चीज पर एक चीज और, हम लोग जो तेल के भंडार की बात करते हैं, मैं ऑयल कंजर्वेशन की बात कर रहा हूं यहां, तो तेल पूरी दुनिया के अंदर आपका क्या आइडिया है कि कितने साल तक जो प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन चल रहा है तेल का, अगर मैं उसी रेट के हिसाब से कंजम्पशन करता रहूं तो तेल कितने साल तक लास्ट करेगा? वो बोलते हैं ना चलती तो ऐसे बैठे हुए, वो क्या बड़े काम की चीज है। जैसे कि आपकी लड़ाई हो गई थी तो आपने क्या उसको अपने हाथ को घुमाया, दूसरा क्या आपने उसको लंबा करके किसी के ऐसे मार दिया, पूरा गला वैसे फाड़ देगी। हाँ बताइए काका, मजा आवे छे तमने? मजा आवे छे? हाँ बताइए, तेल कितने साल तक लास्ट है? इसे मैं बोतल से यस सर, तेल कितने सालों तक लास्ट करेगा? आप किसी को कोई टेंशन तो नहीं हो रही है? आप पहले तो वैसे बैठे हुए थे, वो ना हनुमान चालीसा, आपको याद है हनुमान चालीसा? उसमें एक लाइन है, तुम प्रिय भरत ही सब भाई, आप मुझे भरत के समान प्रिय हैं। यस सर, यस सर, एनी आंसर? आपका वेक अंडरस्टैंडिंग क्या बोलता है? क्या है भैया? यस सर, गिव द आंसर एंड लीव। फॉर हाउ मेनी इयर्स? 20 years सर ने आंसर दिया है, थोड़ा सा और चेंज करने की जरूरत है इसको। हाँ 52 क्यों बोला आपने? आपने 50 क्यों नहीं बोला? आपने 55 क्यों नहीं बोला? आपने 50 ऐसा तो नहीं कि वो आप माला जम रहे थे। जैसे ही आप आ गए तो माला रुक गई। 52 एक आंसर आया, 50 एक आंसर आया, और प्लीज 50 is a fair enough answer। या और थोड़ा सा एक और वैल्यू बोल दीजिए। 65 थोड़ा सा और है? हाँ देखो ऐसा है, हम जिसकी नकल करते हैं ना वो भी गलत लिखा होता है, इसलिए दूसरे की कॉपी करने के पहले सोचे कि मैं जिसकी कॉपी कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं। 52 was one answer, 50 was one answer, एक और कोई आंसर दे दीजिए। 53 नहीं सर, हाँ आपने 47, इनका वही आंसर। अखिल सिंगला साहब, इनको एक चॉकलेट आप दे दीजिए। तो इससे हमको पता ही लगा, इस तालियां थोड़ा बजाइए, तालियां आप ताली करके भी आप बजाएंगे ना तालियां, तो आपकी बॉडी को भी बड़ा फायदा होता है। आप ऐसे करके ताली बजाइए 10, ये दे ओनली दिस पोर्शन शुड टच, ओके, ये, और फिर ऐसे करके बजाइए। ये पूरा 10 मिनट का एक्सरसाइज होता है। आपको कभी भी आलस आता है, आपको कभी कोई थकावट लगती है, यू डू दिस फॉर 10 मिनट्स, यू विल फील रिलैक्स। सर जी इसमें एक चीज कहना चाहूंगा। हाँ जी सर।
अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़े, ठीक है, तो उसमें मे बी आई थिंक जब मैं 10th में था, मे बी 25 ईयर्स बैक, तभी भी टेक्स्ट बुक में वो शायद टेक्स्ट बुक 5 साल या 10 साल पहले लिखी गई होगी, उसमें 20 ईयर्स लिखा रहता है। उसमें सर क्या है और कल परसों ही मैं एक कुछ एनर्जी के ऊपर फोरम भी पढ़ रहा था, एंड देन ही सेड 40 ईयर्स। यस, मैं आपको बताता हूं सर। तो इसमें मेनली क्या है कि रिसोर्सेज आर नॉट, दे बिकम। मेन पर्पस ये है कि इट्स ऑल्सो कंजर्वेशन, डिस्कवरी ऑफ न्यू रिसोर्सेज एंड हाउ मच, क्योंकि रिसोर्स कंप्लीट यूज नहीं होता है, उसका सम परसेंटेज ऑफ रिसर्च यूज होगा, देन ओवर द टाइम, ठीक है, यू हैव ए मोर एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी ओवर यू। जस्ट मैंने कहा शेयर करूं, नहीं टॉपिक मुझे भी मिल जाए। इन्होंने सर ने जो बोला, आप आज से 50 साल के बाद भी लिखा रहेगा कि तेल 50 साल तक और मिलेगा। आप कहेंगे वो सर तो उस दिन आया था गोकुल ग्लोबल के अंदर, वो पीली रंग की टोपी पहन के आया था, वो कह रहा था कि 43-44 साल तक तेल है। 47 was the nearer answer to the correct one. That's why he has been given the chocolate. The correct answer is 43 years. Okay, 43 years तक तेल लास्ट करेगा given the current rate of consumption. अगर रेट ऑफ कंजम्पशन बढ़ जाएगा तो ये 43 और कम हो जाएगा। ये रेट ऑफ कंजम्पशन को हम लोग कम कर देंगे या हम लोग कंजर्वेशन को बढ़ा देंगे, हम लोग जुडिशियस यूज करेंगे, हम लोग अपने इंजन की, वो भी आगे हम लोग आएंगे, एक स्लाइड है इसके अंदर। तो अभी समझने के हिसाब से है कि 40-45 साल तक तेल और रहेगा, 43 years with more precise। अभी जो डिस्कशन चल रहा था, सर ने जो बोला कि जब सर पढ़ते थे उस टाइम भी लिखा जाता था 20-25 साल तक तेल चलेगा। मैं जब ईरान इराक जब वार हुआ था, नॉट इराक कुवैत जब लड़ाई हुई थी 1991 में, मुझे विविडली याद है, उस टाइम हमारे टीचर थे आर के शर्मा, मैथमेटिक्स हमको पढ़ाया करते थे, वो कह रहे थे कि तेल 25 साल और चलेगा। इराक ने कुवैत में तेल के कुएं में आग लगा दी है। बोला मैंने तो अपना स्कूटर 3000 किलोमीटर चला लिया है। समझे आप? तो 25 साल तो 1991 से पूरे हो गए, और आज मैं बोल रहा हूं आपसे 45 साल। तो वो ऐसा क्यों? क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको नए नए तेल के वेल्स और मिलते रहते हैं। दूसरा, अभी जो गाड़ी हमको एवरेज 10 या 12 का देती थी, वो हमको एवरेज 20 का दे रही थी। तो ये सब कंजर्वेशन की हमारी जो अवेयरनेस है, इंडस्ट्री इस चीज को एक्सेप्ट करके उस पर रिसर्च करवाती है। आगे हम लोग आएंगे कि इंडिया के जो एनर्जी के 4 पिलर्स क्या है, तब हम लोग और इन चीजों को डिस्कस करेंगे। टाइम का कोई बांधा नहीं सर, रात तक बड़ौदा पहुंच ही जाएंगे। रात तक बड़ौदा पहुंच ही जाएंगे। आर यू एंजॉयिंग द डिस्कशंस? इज इट टैक्सिंग ऑन यू? इज इट टैक्सिंग ऑन यू? अगर क्लास में कुछ गड़बड़ हुई है तो गलती करके नजर आते हैं। बोला तूने किया? बोला नहीं सर मैंने नहीं किया। बोला नहीं तूने किया होगा, जबकि उसने नहीं किया होगा, किया होगा इसने। ये आगे बैठा है, टीचर इस पर शक भी कम करेगा कि आगे बैठा है स्टूडेंट बच्चा, आगे वाला बच्चा कभी शैतानी नहीं करता है, लेकिन आगे वाला भी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब कच्चा तेल सिर्फ 43 साल तक लास्ट करेगा, तो जो उससे तमाम दुनिया भर की चीजें बनती हैं वो भी सब बनना बंद हो जाएंगे। तो जो भी बाई प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट्स हमारे क्रूड ऑयल से बनते हैं, very dashing entry. That entry, you know, befits your personality. Okay, आगे बढ़ते हैं। तो ये बताइए कच्चे तेल से क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं? बताइए जल्दी से बताइए। Within 1 minute we should finish off and we should move ahead. पेट्रोल बनता है, एलपीजी बनती है, डीजल बनता है, मिट्टी का तेल बनता है, हवाई जहाज का तेल बनता है। फिर आपके जो मैरिन फ्यूल्स होते हैं, मैरिन फ्यूल यानी कि जो पानी के जहाज को चलने के लिए VLSFO, वेरी लो सल्फर फर्नेस ऑयल बनता है। बॉयलर को चलाने के लिए नॉर्मल फर्नेस ऑयल बनता है।
ये नॉर्मल बॉयलर कहाँ पर होते हैं? इंडस्ट्रीज के अंदर भी होते हैं, पावर प्लांट्स के अंदर भी होते हैं, ठीक है। और क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं? बिटुमिन बनता है, सल्फर बनता है, और क्या क्या बनते हैं? जितने भी हमारे पेंट्स होते हैं, पेंट में यूज होने के लिए एमटीओ, मिनरल टर्पेंटाइन ऑयल, वो भी इसी से बनता है। हम लोग अपनी गाड़ी की ग्रीसिंग कराते हैं, वो भी इसी से बनते हैं। हम लोग लुब्रिकेंट डालते हैं, वो भी तेल्स के ही बाई प्रोडक्ट होते हैं। और क्या बनता है? सल्फर बनता है। सल्फर को मैं कहाँ यूज करता हूँ? वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को बनाने में आगे यूज करता हूँ। और बिटुमिन बनता है। ये बिटुमिन इतना छोटा सब्जेक्ट नहीं है डामर। डामर के अंदर इसी बात पर मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहूंगा। सम टाइम बैक एट गुजरात रिफाइनरी a Japanese team visited गुजरात रिफाइनरी कैंपस। वो जापानीज टीम क्यों विजिट करने आई थी ये बताइए। अभी हमारे यहाँ पर जो एक बुलेट ट्रेन का जो काम चल रहा है, वो बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ डाली जा रही है? अहमदाबाद से कहाँ तक? मुंबई, ठीक है, बुलेट ट्रेन डाली जा रही है। अब जब क्या होता है कि जब बुलेट ट्रेन चलेगी उसकी क्या स्पीड रहेगी? 300 किलोमीटर पर आवर के आसपास स्पीड है, ठीक है सर। तो जब इतनी तेज स्पीड पर जब ट्रेन ट्रैक के ऊपर दौड़ेगी तो ट्रैक के ऊपर वाइब्रेशन आएगा। अभी हम लोगों को बहुत दूर से ट्रेन की आवाज के अलावा हमको कुछ गड़गड़ाहट की आवाज भी आती है। किस चीज की आवाज होती है? वाइब्रेशन। वेरी गुड। किस चीज का वाइब्रेशन होता है? ट्रैक और जो उसके नीचे जो बैलास्ट है, वो बैलास्ट क्या होता है? एक दूसरे से टच होकर वो जो ट्रेन जो इतनी स्पीड से मूव कर रही है उसने अपनी वाइब्रेशन दी ट्रैक को, और ट्रैक ने किसको दिया? बैलास्ट को, और बैलास्ट ने किसको दिया? सब ब्रेड को, ठीक है। तो ये बैलास्ट क्या होता है? एक दूसरे से टच होता है, और टच होने के कारण दिस वाइब्रेशन इज कॉल्ड चैटरिंग वाइब्रेशन, और हम लोग उसकी एनर्जी को डैम्प आउट कर देते हैं। लेकिन ये एक बैलास्ट दूसरे बैलास्ट से जब टच होता है तो इसके सुपर पोजिशन के कारण एक हाई एम्पलीट्यूड वेव बनती है जिसकी हमको दूर तक आवाज सुनाई पड़ती है। तो अब क्या है कि आपने देखा होगा कि जो घर रेलवे ट्रैक के पास होते हैं और अगर शताब्दी वहां से गुजरती है तो घर हिलते हैं। तो घरों का हिलने के कारण क्या होता है? एक तो शताब्दी की स्पीड तेज होती है, तो जो चीज इतनी तेजी से गुजरेगी तो वो अपने आसपास पूरा वैक्यूम क्रिएट करती है, और दूसरा क्या है कि जो ट्रैक है उसका वाइब्रेशन भी आसपास ट्रांसफर होता है। तो जब बुलेट ट्रेन जिस स्पीड से चलेगी तो उसका वाइब्रेशन बहुत तगड़ा होगा। तो पहले तो क्या था प्लान की, जो एग्जिस्टिंग बड़ौदा अहमदाबाद का जो रेलवे ट्रैक है उसके साइड में ही इसको ले किया जा रहा था कुछ मीटर दूर, लेकिन उसमें फिर क्या है कि घरों का डिमोलिशन बहुत ज्यादा आ रहा था, समझ गया। तो फिर अभी एकदम फ्रेश नया रूट बनाया जा रहा है, और ये नया रूट भी आप समझिए कि जो नेचुरल ग्राउंड लेवल है उससे करीब करीब 6 मीटर ऊपर है। पूरा सबग्रेड तैयार किया जा रहा है, कॉम्पैक्टेड सबग्रेड, उसके ऊपर ट्रैक वगैरह ले होगा। तो जो बिटुमिन है उसको एक स्पेशल टाइप की कंक्रीट, ये चीजें है ना जानने के लायक, उसको हम लोग PMAC क्या है? पॉलीमर मॉडिफाइड असफाल्ट कंक्रीट। हम लोग जो बुलेट ट्रेन का जो ट्रैक है उसके नीचे इसका इस्तेमाल करने वाले थे, पॉलीमर मॉडिफाइड असफाल्ट कंक्रीट। ये वो कंक्रीट है जिसके अंदर में पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमिन, जिसको हम लोग कहते हैं PMB, उसका हम लोग इस्तेमाल करने वाले। क्यों करने वाले हैं? एक तो नंबर 1 ये वाटर प्रूफनेस को इंश्योर करेगा। मैं क्या करूंगा? एक ट्रेपेजॉइडल, जैसे अगर मेरा ये अगर मेरा ट्रैक चल रहा है, ये मेरा ट्रैक है, दिस इज माय ट्रैक, तो मैं क्या करूंगा? एक ट्रेपेजॉइडल ना एक बैरियर क्रिएट कर दूंगा PMAC का, पॉलीमर मॉडिफाइड असफाल्ट कंक्रीट। और ये क्या होगा? इसके अंदर जब जहां पर भी आपका बिटुमिन आ गया तो वहां पर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। बिटुमिन क्या करता है? शॉक्स को एब्जॉर्ब करता है। तो जो वाइब्रेशन ट्रैक से मान लीजिए कि यहां तक डैम्प होना था नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर, तो वो PMAC को प्रोवाइड करने से बहुत पास में ही डाई आउट हो जाएगा। पॉलीमर मॉडिफाइड असफाल्ट कंक्रीट।
थोड़ा सा सर बात कर लें इसकी, तो लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये जनरल पार्लेंस के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है सर। बिटुमिन जो है, बिटुमिन व्हाट इट इज कंपोज्ड ऑफ, किस चीज से बना होता है, क्या होता है बिटुमिन के अंदर? मेजरली कार्बन रहता है, क्लोज टू 87% कार्बन होता है, लेकिन क्या वो कार्बन फ्री फॉर्म के अंदर होता है? नहीं होता है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में होता है। जो कच्चा तेल होता है उसके अंदर करीब करीब 16,000 कंपाउंड्स होते हैं, वो बाकी सबको निकल गए डिस्टिलेशन होके। डिस्टिलेशन का मतलब क्या? मैंने किसी चीज को गर्म किया, गर्म करके उसका वेपर निकल रहा है, उस वेपर को मैंने इकट्ठा किया, उस वेपर को मैंने और प्रोसेस किया, उसको ठंडा किया, फिर से लिक्विड बना लिया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। जैसे मैंने पानी को उबाला, वो पानी गंदा है, मैंने पानी को बॉईल किया, पानी को बॉईल करने का उसका स्टीम बना, कचरा नीचे रह जाएगा, उस स्टीम को मैंने कंडेंसर के थ्रू पास किया तो मुझे वहां पर फ्रेश वाटर मिलेगा। ये नेचर के अंदर ये प्रोसेस नहीं होता है। नेचर के अंदर रेन साइकिल, हमारी बारिश कैसे आती है? ऐसे तो आती है। रेनफॉल, इवोपरेशन, उसी में कंडेंसेशन, फिर बारिश गिर जाती है। तो जो बारिश का पानी होता है दैट इज एज गुड एज डिस्टिल्ड वाटर, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, डिस्टिल्ड वाटर। तो बिटुमिन के अंदर भी क्या होता है, जितने भी क्रूड के अंदर का जो वोलेटाइल कंटेंट होता है, जो उड़ने वाला कंटेंट होता है, वो तो निकल जाता है बाकी प्रोडक्ट्स के अंदर। तो बिटुमिन के अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिटुमिन के अंदर क्रूड के रह जाते हैं। दूसरी बात यह है उसका स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? क्या रूम टेम्परेचर पर जो डामर है, जो बिटुमिन है, वो लिक्विड होता है? आप लोगों ने बिटुमिन के बारे में पढ़ा है ना, कुछ टेस्ट भी होंगे आपके यहाँ पर, जो लैब होगी बिटुमिन की पेनिट्रेशन वैल्यू निकालना। आप फाइनल ईयर स्टूडेंट्स या आपने बिटुमिन के टेस्ट पढ़े होंगे ना, फाइनल ईयर, आप फाइनल ईयर में, हाँ आज खड़ा हो, आपने पहले खड़ा किया। तो बिटुमिन के आपने टेस्टों के बारे में पढ़ा है, हाँ? क्या क्या टेस्ट पढ़े हैं? जैसे बोलो ना कुछ भी, क्या क्या पढ़ा है? किसी और को, कोई और बताए? डक्टिलिटी, पेनिट्रेशन। हाँ, डक्टिलिटी बहुत बढ़िया, डक्टिलिटी और पेनिट्रेशन और सॉफ्टनिंग पॉइंट। सॉफ्टनिंग पॉइंट, बहुत बढ़िया। तो सॉफ्टनिंग पॉइंट आप आंसर दीजिए। यू वांट चॉकलेट्स? बहुत बढ़िया, यू गिव द आंसर। व्हाई यू आर साइलेंट? साइलेंट नहीं रहना है, यू हैव टू बी योर ओन ब्रांड एम्बेसडर। नो वन विल डू योर ब्रांडिंग, you only have to do your branding. This is a mantra I am giving you. You are your own brand ambassador. No one will do branding for you. आपका जो दोस्त है ना, ये जब आप एग्जाम की तैयारी करोगे, वहाँ जो पोस्ट निकलेगी वहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर R&D डिपार्टमेंट गुजरात स्टेट, तो वहाँ पर पोस्ट निकली है एक। आप चाहेंगे नहीं बेटा तू कर ले नौकरी, आप चाहोगे ना मेरी नौकरी लगे, तो वहां पर क्या काम आएगा? जो आपने अपनी पढ़ाई कर रखी है। तो इसलिए आप उसको बोलिए। तो सॉफ्टनिंग पॉइंट बिटुमिन का कितना कितना होता है? देखिए बिटुमिन जो है वो कई ग्रेड से बनता है, जो आगे आएंगे। अभी सिर्फ इतना समझिए कि रूम टेम्परेचर पर बिटुमिन किस स्टेट में होता है? सॉलिड। और जब हम लोग जिस टेम्परेचर पर बिटुमिन को हैंडल करते हैं, वो टेम्परेचर पर लिक्विड क्या, बिटुमिन क्या बन जाता है? लिक्विड बन जाता है, ठीक है ना। अभी इसमें टेम्परेचर्स का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, जिस पर हम लोग बिटुमिन को टेस्ट करते हैं। उसी टेम्परेचर पर मैं टेस्ट क्यों करता हूं, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसका कलर, विस्कस वोलेटिलिटी, व्हाट इज वोलेटिलिटी? फ्लैश पॉइंट पढ़ा है? फ्लैश पॉइंट, एनी वन ऑफ यू प्लीज, व्हाट इज द वोलेटिलिटी? का मतलब क्या है? वेपर फॉर्मिंग टेंडेंसी ऑफ एनी प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज इट्स वोलेटिलिटी, कि किसका वेपर कितना जल्दी फॉर्म होगा। आप मान लीजिए हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं,
दो प्रोडक्ट हैं, ये ए प्रोडक्ट है, ये बी प्रोडक्ट है, ठीक है। इसकी जो वॉलेटिलिटी है ऑफ ए बी की वॉलेटिलिटी से ज्यादा है। ये ए है, ये बी है। जब मैं बोल रहा हूं कि प्रोडक्ट ए का वॉलेटिलिटी काका चेयर ने, आपको नींद आ रही है? आप चेयर हैं? आप गिर मत पड़ना, आप दोनों ध्यान रखना है इनका। ऐसे ऐसे करके ऐसे पकड़ लेना है ना, दोनों लोग तगड़े बैठे हो काका के बगल में, ठीक है। देख तो जो वॉलेटिलिटी है प्रोडक्ट ए का वो बी प्रोडक्ट की वॉलेटिलिटी से ज्यादा है। इसका क्या मतलब है कि इसके ऊपर जो इसका वेपर है वो ज्यादा बना होगा। ओके, जिस प्रोडक्ट की वॉलेटिलिटी जितनी ज्यादा है उसका वेपर उतनी ही आसानी से बन जाएगा, करेक्ट। जिसका वेपर जितनी आसानी से बन जाएगा वो एयर के साथ मिक्स भी हो जाएगा। और आग किसके अंदर लगती है? एयर वेपर मिक्सचर के अंदर। आर यू गेटिंग दिस व्हाट आई एम टॉकिंग? ये लकड़ी का डस्टर है, ये लकड़ी का डस्टर है। मैं इसको अगर आग में डाल दिया और मैंने उसको 3-4 सेकंड के बाद बाहर निकाल दिया, तो क्या इसमें आग लग जाएगी? क्यों नहीं लगेगी? वहीं मैंने जैसे ही पतला सा कागज का टुकड़ा डाला उसने आग को तुरंत पकड़ लिया, या जैसे ही मैंने ऊपर से एक केरोसिन का ड्रॉप डाला वो तुरंत उसने आग पकड़ लिया। लकड़ी ने आग क्यों नहीं पकड़ी? या लकड़ी के अंदर जब मैं आग के अंदर मैं लकड़ी को 30 सेकंड तक 1 मिनट तक रखूंगा तब वो लकड़ी एकदम आग पकड़ लेगी। और जब मैं इसको बाहर निकालूंगा जलती हुई लकड़ी को और मैं इसके ऊपर पानी डाल दूंगा हल्का सा, आग बुझ जाएगी। क्या मैं उस कंडीशन में इसको टच कर सकता हूं? नहीं, लकड़ी गर्म है एकदम, तो उसमें तुरंत आग क्यों नहीं लगी? और थोड़ा सा पानी डालने के बाद आग क्यों बुझ गई? दोनों इंटर रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए होता क्या है, हर प्रोडक्ट का एक इग्निशन टेम्परेचर होता है। इग्निशन टेम्परेचर होता है, उतना टेम्परेचर आने के बाद ही वो मटेरियल आग पकड़ता है। मैंने क्या बोला? आग हमेशा मैटर के, ये किस स्टेट ऑफ मैटर है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। आग हमेशा वेपर फेस या मैटर के गैसियस फेस के अंदर ही लगती है, कभी भी सॉलिड और लिक्विड के अंदर आग नहीं लगती है। तो जब मैं लकड़ी को आग के अंदर डालता हूं तो इसके अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो कि लकड़ी के लिए 90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जब वो टेम्परेचर आता है तो वो जो लकड़ी के अंदर जो लिक्विड मटेरियल, इसको हम लोग बोलते हैं सैप, वुडन सैप, वो मटेरियल बाहर इवोपोरेट होने लग जाता है और वो इवोपोरेट होके एयर से, ऑक्सीजन से मिक्स करता है और आग आसपास है ही, तब वो आग पकड़ लेती है। अगर मैं इस लकड़ी का टेम्परेचर 90 डिग्री से कम कर दूं पानी छिड़क कर, तो इसके अंदर आग बुझ जाएगी, लेकिन मैं इसको पकड़ नहीं सकता हूं क्योंकि टेम्परेचर 89.5 होगा, तब भी आग तो बुझ जाएगी लेकिन वो गर्म नहीं। तो जो मटेरियल जितना ज्यादा वॉलेटाइल है उसके अंदर आग लगने का चांस उतना ही ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। समझ गए? तो फ्लैश पॉइंट क्या होता है? फ्लैश पॉइंट इज अ मिनिमम टेम्परेचर एट विच a given substance emits sufficient vapors so that when a pilot flame, माचिस की तिल्ली नहीं, पायलट फ्लेम, पायलट फ्लेम का मतलब एक फ्लेम जिसका साइज फिक्स है, जिसका शेप फिक्स है। जब हम लोग इस प्रकार की फ्लेम को
उस मटेरियल के पास लेकर आए, वो मिनिमम टेम्परेचर जब उस मटेरियल से सफिशिएंट वेपर्स इमिट हो जाएं, ताकि जब उस मटेरियल के एयर वेपर मिक्सचर के पास एक पायलट फ्लूइड को लेकर आया जाए तो क्या होगा? क्या होगा? स्पीक आउट। तो क्या होगा? वो एक मोमेंटरी फ्लैश क्रिएट करेगा, आग लगेगी और बुझ जाएगी। फ्लैश पॉइंट पर मटेरियल आग नहीं पकड़ता है, ये नोट करिए आप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्लैश पॉइंट पर मटेरियल आग कैच नहीं करता है। फ्लैश पॉइंट पर क्या होगा? एयर वेपर मिक्सचर के पास जब पायलट फ्लेम को लेकर आते हैं तो एक मोमेंटरी फ्लैश पैदा होता है और बुझ जाता है। उसका इंडिकेशन क्या है? अगर किसी मटेरियल का फ्लैश पॉइंट जितना कम है, इसका मतलब क्या कि वो कम से कम टेम्परेचर पर भी ज्यादा से ज्यादा वेपर बनाएगा। तो चूंकि वेपर जब एयर से मिक्स करता है और जब कोई चिंगारी या आग का स्रोत उसके कांटेक्ट में आता है तभी आग लगती है। तो जब कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कि कम टेम्परेचर पर भी ज्यादा वेपर बनाता है तो मुझे उसकी हैंडलिंग में सावधानी बरतनी है। ये मुझे फ्लैश पॉइंट से पता चलता है। तो बिटुमेन का जो फ्लैश पॉइंट है वो कम से कम 220 डिग्री होता है। उस हिसाब से ये बहुत ही सेफ प्रोडक्ट है हैंडल करने के लिए, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड स्टेट में रहता है। वो सॉलिड से पहले लिक्विड में आएगा, फिर लिक्विड के बाद उसका वेपर बनेगा, वो वेपर एयर से मिक्स करेगा, तब उसके अंदर आग लगती है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये काफी सेफ प्रोडक्ट है। ये बताना था आपको, इतनी सारी बात का सार सिर्फ ये है। चलिए ये बताइए, विस्कस नेचर, बिटुमेन क्या पानी की तरह बह जाता है या वो चौधरी स्मृति? चौधरी साहब कौन है? नहीं, चौधरी साहब कहाँ के रहने वाले? नहीं, चौधरी सर ने नॉर्मली क्या यूपी राजस्थान हरियाणा में ज्यादा होता है, आप यहीं के रहने वाले? चौधरी स्मृति, चौधरी साहब यहाँ भी एक जाट? अच्छा, चौधरी यहाँ होते हैं। ये व्यारा साइड है, व्यारा साइड है, तब चौधरी बॉडी में व्यारा चौधरी साहब जाते हैं नॉर्थ में। चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब अपना इतना लंबा हुक्का लेके बैठे होते हैं, जानते हो? नहीं है, इधर हुक्का नहीं होता है, हुक्का जाते हो लेकिन चौधरी साहब का हुक्का रहता है। गाँव पंचायत लगती है, चौधरी साहब पंचायत लगती है। चलो आपकी दिन लगती पंचायत है? चलो है, लगती है, कोई नहीं, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो बिटुमेन है, बिटुमेन, हेलो सर, आएंगे ना वापस? मजा आ गई से तुमने क्या? हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिटुमेन क्या है? बहुत ही चिपचिपा प्रोडक्ट है, विस्कस प्रोडक्ट है। उसकी जो बाइंडिंग एबिलिटी है, एग्रीगेट को जो बांधने की जो उसकी एबिलिटी है, वो भी उसके विस्कस नेचर के कारण है। बेटा बताइए, बिटुमेन कितने टाइप का होता है, कुछ आइडिया है आपको? मीन्स ग्रेडिंग वाइज? यस यस यस। पेनिट्रेशन के मुताबिक करें तो 80/100 का होता है और 60/80 का होता है। आप अभी रुक जाइए, बाकी और क्या क्या होते हैं? दो तो इन्होंने बता दिए, और दो क्या होते हैं? 80/100 होता है, 60/80 होता है। ये क्या कुछ अलग जगह पढ़ते हैं क्या? ये भी तो यहीं पढ़ते हैं ना, गोकुल ग्लोबल, या इन्होंने ट्यूशन लगा रखी है सर के पास अलग से? नहीं, क्या है तो ये बता रहे हैं, बाकी लोग नहीं बता पा रहे, इसलिए पूछ रहा हूं। और बताइए कौन कौन से ग्रेड होते हैं बिटुमेन के? यस सर। अच्छा, बहुत अच्छा बताया आपने। विस्कोसिटी ग्रेड के हिसाब से क्या क्या होते हैं? विस्कोसिटी के हिसाब से VG10, VG20, 30। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी।
that whatever I am talking, at least you are understanding it among the lot of your friends. बहुत अच्छा. VG10, VG20. VG का क्या फुल फॉर्म होता है बेटा? विस्कोसिटी. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. तो ये जो विस्कस नेचर है, bitumen is a very viscous product. Okay, and based on the viscosity, we have this classification of the bitumen. Viscosity grade 10, viscosity grade 20, viscosity grade 30. आप सब लोग बेटा सुनो है ना? VG30 और viscosity grade 40. जैसे जैसे हम लोग VG10 से VG40 की तरफ आएंगे, विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी कि कम होती जाएगी? आप बताओ बड़े भैया. आपने हाँ, जब मैं VG10 से VG20 से VG30 से VG40 की तरफ आऊंगा तो विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी कि कम होती जाएगी कि सेम रहेगी? है कम होती जाएगी. और कोई इनको बताना चाहेगा? और किसी का आंसर डिफरेंट है इससे? क्या होगी? सही बोला. हाँ, क्या क्या होगी सर? विस्कोसिटी कम होगी. आप बताओ चाय वाले भैया. मैंने बोला था ना जो नकल